Very good morning, Jyoti this side once again in front of you with a new topic of IPC, and the topic name is plea of unsoundness. This topic is one of the most important topic of the IPC, especially for the students who are preparing for judiciary from pre point of view and mains point of view. This topic is very important. I will discuss this topic in detail here in this video. This topic is covered from section 84 to section 86, but I will concern with section 84 in this video. For section 85 and 86, I will make a different video, and this I will concern only with section 84. So let's start the topic here. What actually plea of unsoundness is? The topic is basically if any person who is unsound mind, who is insane, and that person committed any offense, will he get defense under the law? Will he get punished, or will he be exempted from the punishment? So section 84 gives the exemption. Just a second. सेक्शन 84 कहता है अगर किसी अनसाउंड पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाए, ठीक है। बट ऐसे ही नहीं है कि अनसाउंड हो तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। जो भी सेक्शन 84 के एलिमेंट्स हैं दो शुड बी प्रूव्ड सफिशिएंटली। सो लेट्स कम अप व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सेक्शन। आई हैव लिस्ट आउट हियर। व्हेन यू रीड द सेक्शन यू विल फाइंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द पर्सन शुड बी अनसाउंड माइंड। पर्सन अनसाउंड होना चाहिए, ठीक है। कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। Means if the person is unsound, means if the mere unsoundness will not give you defense under the section. You should be unsound at the time of committing the offense. अगर आपकी unsoundness offense के होने से पहले या offense के होने के बाद है, उसके symptoms है आपके unsoundness के symptoms बाद या पहले हैं, they will not give you defense in the section. What is important? That unsoundness should be present at the time of committing the offense. Otherwise, you won't get defense under the section. Okay? Then, unsoundness should be such that which has made the person incapable of knowing the nature of the act. Means the person is not aware about the consequences of his act. जो वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे नहीं पता है, या उसको ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, एंड वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल टुडे इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज पर्सन इज अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। तो अगर अनसाउंडनेस, if I have let's suppose I had treatment 2 years back for 15 days in any mental asylum, and today I have committed any offense, will this give me defense under this section? No. What is important? The unsoundness should be present at the time of committing the offense. So all the pre-offense behavior, post-offense behavior, and the history of medical unsoundness, ठीक है, all these points per se will not give you defense, although these points will be relevant because these points will go on to prove that you were unsound at the time of committing the offense. क्योंकि देखिए उस particular time को prove करना मुश्किल है ना। Maybe that unsound person alone when he has committed the offense, तो फिर आप कैसे prove करोगे? वो खुद तो prove कर नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद ही नहीं जानता था कि वो जो कर रहा है उसको उसके consequences नहीं पता है। तो कैसे prove करोगे? ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का आप सहारा लोगे। कोर्ट को आप सर्टिफिकेट दोगे, देखिए मैंने अपना पहला ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, जिस डिसीज का मैंने ट्रीटमेंट कराया था और जो उस डिसीज के सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स मेरे ऑफेंस के करने से पहले एट्रीब्यूटेड थे, या मैंने ऑफेंस जब किया उसके बाद मैंने जो बिहेव किया वो मेरे सिम्टम्स को एट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स जो हैं मेरी अनसाउंडनेस को प्रूव करने में सपोर्ट करेंगे, बट पर से विल नॉट गिव मी डिफेंस, ठीक है। दिस शोज वन मोर थिंग। एक क्वेश्चन है कि इस सेक्शन में मेडिकल इंसैनिटी आपको डिफेंस देती है
क्या खाली मेडिकल इंसैनिटी आपको डिफेंस देती है? तो आंसर इज नो. मेडिकल इंसैनिटी इज द causative factor. This is a causative factor which made the person legally unsound. What is legally unsound? That person is not aware what he is doing. He don't know the consequence of his act. और जो उसका एक्ट है वो ऑफेंस है, अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ, और उसे ये नहीं पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं पनिश हो जाऊंगा. तो दिस इज लीगल अनसाउंडनेस. तो एक्चुअली आपको डिफेंस क्या दिलाती है? लीगल अनसाउंडनेस दिलाती है. मेडिकल अनसाउंडनेस आपको डिफेंस नहीं दिलाती है. This is the only causative factor which makes the person legally unsound. Clear? So the time factor is very important, and I hope this time factor is clear to you. Okay? Now, unsoundness should be such that has made the person incapable of knowing the nature of the act. What is the meaning of incapable of knowing the nature of the act? I'll explain you with the example. For an example, one person A who is insane, ठीक है, उसने क्या किया? एक सोते हुए आदमी का सर काट दिया विद अ थॉट कि कितना मजा आएगा कि जब ये सो के उठेगा तो इसको अपना चेहरा बिना फेस का देखने को मिलेगा. अपनी बॉडी में वो अपना फेस नहीं देखेगा. दैट विल बी हाउ फनी. आई विल क्लैप दैट टाइम. सो सच पर्सन डोंट नो द कॉन्सिक्वेंस व्हाट ही इज डूइंग. उसको नहीं पता कि मैं सर काट दूंगा तो वो सो के ही नहीं कभी उठेगा. This is the example of incapable of knowing the nature of the act. The such person don't know कि ऐसा करने से consequence क्या होंगे. वो तो सिर्फ fun के लिए, out of fun he did that act, but वो offense है और उससे वो सामने वाला मर गया. So this is the meaning of incapable of knowing the nature of the act. Third point is wrong or contrary to law. What is wrong? We interpret wrong as a morally wrong because contrary to law itself is expressly written in the section. अगर ये नहीं होता तो हम इसको contrary to law ले लेते, पर खाली wrong लिखा है तो we will take it as morally. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. अनसाउंडनेस होनी चाहिए. अनसाउंडनेस जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस. उससे पहले आपकी जो भी अनसाउंडनेस थी, ऑफेंस करने के बाद अगर आपकी अनसाउंडनेस थी, इज इमटेरियल. Although these points go on to prove, all these points are the relevant fact which support you to prove your insanity at the time of committing the offense. Then I have explained you incapable of knowing the nature of the act, wrong and contrary to law. So now next point is what is the rule to get the defense under the section. देखिए पहले क्या है, यहाँ पे 3 points है. पहला incapable of knowing the nature of the act, ये पहला point. दूसरा है morally wrong और contrary to law is a third point. I'm giving these points here. तो देखिए जब भी आपको डिफेंस लेके आना है, सबसे पहले तो आप ये प्रूव करोगे कि आप अनसाउंड थे, और जो अनसाउंडनेस की सिम्टम्स थे वो प्रेजेंट कब थे? टाइम ऑफ ऑफेंस. ठीक है, और उस टाइम पर यू वर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. सबसे पहले आप ये प्रूव करोगे दैट यू वर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. अगर ये पॉइंट प्रूव हो गया तो आपको यहीं कहीं डिफेंस मिल जाएगा. यू डोंट नीड टू गो डाउन द लाइन. आपको ये मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ प्रूव करने की जरूरत नहीं, यहीं कहीं डिफेंस मिल जाएगा. लेट्स सपोज कि पॉइंट नंबर 1 प्रूव नहीं हो पाया, तो फिर आप नीचे आओगे और हियर यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 2 यानी मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ दोनों पॉइंट्स को प्रूव करोगे कॉन्जॉइंटली. दीज 2 पॉइंट्स शुड बी प्रूव टुगेदर. मीन्स अगर खाली मॉरली रॉन्ग प्रूव हो गया और ये प्रूव नहीं हुआ तो नो डिफेंस, या ये प्रूव नहीं हुआ और कॉन्ट्ररी टू लॉ प्रूव हो गया तो भी नो डिफेंस. ये दोनों साथ में प्रूव होने चाहिए. तो दिस इज द रूल टू गेट द डिफेंस अंडर दिस section. I hope this is clear. Now point arises, what are the offenses which gives you the defense under this section? See, कुछ offenses मैं आपको कुछ examples दे देती हूँ. जैसे insane delusion. Insane delusion में क्या होता है कि आप presume करने लग जाते हैं. Person start presuming. Let's suppose my mother is coming towards me with a
with a cup of tea and I start presuming that any other person is coming towards me with a gun or the knife to stab me or to shoot me, and in this delusion I commit murder of my mother, of my mom. So यहाँ पर क्या होगा, मेरे को ये दिस इज कॉल्ड इंसेन डिल्यूजन, ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे इंसान प्रिज्यूम करने लग जाता है और यहाँ पर डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि वहां पे मेंस्ट्रिया तो नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आप तो कुछ और ही प्रिज्यूम कर रहे हो, आप अलग ही दुनिया में पहुंच गए जो यहाँ की है ही नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि इररेजिस्टिबल इम्पल्स मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर एंग्रीनेस, उनको अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं। फॉर एन एग्जांपल, वाइफ ने कहा आई गेट बोर्ड एट होम, आई वांट टू डू अ जॉब, एंड हस्बैंड गॉट एग्रेसिव, जस्ट थ्रो द टीवी, फ्रिज, एसी तोड़ दिया, घर का फर्नीचर तोड़ दिया, और वाइफ को भी बहुत मारा। या वाइफ ने कहा कैन आई गो माई होम, मैं अपनी मम्मी से मिला हूँ, और हस्बैंड गेट बॉइल्ड, उसको गुस्सा आ गया फॉर नो रीजन। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है। कई बार मदर्स ऐसा करती हैं, आई पर्सनली डिड दिस, मुझे अपने बेटे पे गुस्सा आया, मैं उसको तो कुछ नहीं किया बट आई थ्रू द टीवी रिमोट समवेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने टीवी रिमोट जब फेंका तो मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं था, मुझे अपने एक्शंस पर काबू नहीं था, ठीक है, लेकिन I was aware what I'm doing. I know the consequences of the act. मुझे पता है कि रिमोट में फेंकूंगी तो वो रिमोट टूट जाएगा। हस्बैंड को पता है कि अगर मैं वो फ्रिज फेंक रहा हूँ, टीवी फेंक रहा हूँ, वाइफ को मार रहा हूँ, तो वो से चोट लगेगी और फर्नीचर टूट जाएगा। तो और यहाँ पे क्या कंडीशन होती है सेक्शन 84 में, that person is incapable of knowing the nature of the act, उसे अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। लेकिन irresistible impulse में despite of the fact पर्सन अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तो उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अनसाउंडनेस विद गांजा, ड्रग्स लेना और अल्कोहल लेना, वहां पे भी मिल जाता है। देखिए मेयर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट होना तो डिफेंस नहीं मिलता है, 85 में हमको पढ़ेंगे हम, लेकिन कई बार क्या होता है इंटॉक्सिकेशन से पर्सन अनसाउंड हो जाता है, तो फॉर दैट अनसाउंडनेस डिफेंस मिल जाएगा। मतलब अनसाउंडनेस ऐसा नहीं कि आपने ड्रिंक किया और आप अनकॉन्शियस हो गए हो कुछ देर के लिए और कुछ, तो वहां नहीं, लेकिन रेगुलरली ड्रिंक करने से आप अनसाउंड हो गए और ड्रग्स ज्यादा लेने से आप पागल ही हो गए, तो वहां पे जो इंसानिटी कॉज हुई है उसके लिए आपको डिफेंस यहाँ पर मिल सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स सपोज देयर इज वन ए who lives in one village जहां पर बारिश नहीं हो रही है, there is no rain and all the farmers are very worried about their crops, क्योंकि वो फसल उनकी खराब हो जाएगी। एक को क्या हुआ, एक रात में सपना आया कि मैं अगर किसी की बलि चढ़ाता हूँ तो जो है बारिश हो जाएगी गांव में। उसने सुबह सुबह उठ के क्या किया, उसने अपना बच्चा उठाया, उसे नहलाया धुलाया तैयार किया, उसके लिए नए कपड़े लेके आया, पहनाया उसे, और कहीं पर जाके उसकी बलि चढ़ा दी। और जब लौट के आया विलेज में तो अपने नेबर से कहता है अरे डोंट वरी, खूब खुश होके, अरे तुम चिंता मत करो, अब तो बस बरसात ही बरसात होगी और घर में खुशियां आ जाएंगी क्योंकि मैंने बलि चढ़ा दी। उसी टाइम पर क्या हुआ, एक पुलिस वाला आया, वहां से गुजर रहा था और इसने अपने आप को छुपाया, he tried to hide himself, उसको कुछ डर सा लगा। Now these are the facts of the case, let's decide according to this section। क्या हुआ, क्या ये पर्सन अनसाउंड था? नो। क्या इसको ये पता था, लेट्स सपोज अगर वो अनसाउंड भी है, एक बार को मान लिया, कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है उसकी, लेट्स सपोज, तो क्या वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट प्रूव हो रहा है ये वाला पॉइंट? तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपने बच्चे को नहला रहा है, धुला रहा है, तैयार कर रहा है, उसे लेके जा रहा है, उसी बलि चढ़ाई, उसे पता है कि बलि चढ़ाने से सामने वाला मर जाए, सो देयर ही इज द पॉइंट इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट इज नॉट प्रूविंग, वो प्रूव नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाउन द लाइन नीचे आना पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू द रूल।
अब हमें मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ को एग्जामिन करना पड़ेगा। मॉरली रॉन्ग, उसने आके बड़े ही खुशी से बोला कि बारिश हो जाएगी क्योंकि मैंने बलि चढ़ा दिया। दिस मे बी प्रूव दैट ही डोंट हैव मॉरल, he don't have knowledge that whatever he has done is morally wrong. उसे शायद से ये नहीं पता है, तो ये प्रूव हो रहा है, ये पॉइंट प्रूव हो रहा है कि उसे ये नहीं पता कि जो उसने किया वो मॉरली रॉन्ग है। तो दिस पॉइंट इज प्रूविंग इट। Contrary to law, he knows this act is contrary to law because he hided himself when police person passes away. जब उसके पास से पुलिसमैन निकला तो उसने अपने आप को हाइड करने की कोशिश की। दिस शोज ही नोज दैट हिज एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो पॉइंट नंबर 2 प्रूव हुआ, बट पॉइंट नंबर 3 प्रूव नहीं हुआ। और कंडीशन रूल क्या है यहाँ पे, अगर हम डाउन द लाइन आते हैं तो मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ दोनों प्रूव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्रूव हो रहा है। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस। So I have discussed the illustration also, how to solve these questions. Whenever you solve these questions, please remember the rule which I have explained you here. इसी रूल के साथ अपने फैक्ट्स को एक्सप्लोर करो और उनको इन लॉ में रखो और अपने आंसर को डिस्कस करो। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों एस्पेक्ट से मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया है। सेक्शन 84 तो कवर हुआ, 85 and 86 I will cover in my next video. I hope the topic is clear to you. If you find any problem, any query, please mention your query in the comment section. If you like my content of the video, hit the like button and subscribe my channel. And stay tuned. Thank you so much for watching me. Thank you so much. Bye bye. Take care.